Lenses. Student, please be on time for you all. I'm waiting like it's the class timing was 45, right? And now it is 55. Still students are entering, leaving, entering, leaving. Leaving and entering is means that like okay, fine, but directly 10 minutes late you are coming, that is different. So please avoid that. Okay, now everyone I think is there now. Okay, so we were studying about mirror. Mirror दो type का होता है, correct? Two types of mirror. The first type of mirror, student, is plane mirror, plane mirror, while the second type of mirror is spherical. Okay, plane mirror and spherical mirror. तो plane mirror जो straight होता है, one side will be painted and from the other side you can see your faces. That is called as plane mirror. While if I talk about spherical, so in spherical the surface will be curved. So when the surface is curved, it may be of two types. The first type is concave and the second type is convex. Okay, these are the two different types of spherical mirror. Now if I say concave mirror, it's very simple. Like this is the curved part, and if this part, this is called outer, sorry, this is the inner part of the mirror. So if this part is painted, then it is called as concave, whereas if this part is painted, then it is called as convex part. Okay, so moreover we are not studying anything related to mirror here. Okay, the only concept you should know is plane mirror and spherical mirror. This is something different. We need to study is concave lens and convex lens. Okay, so before we began with that, last time if you remember, just a minute, yes, hello. स्टूडेंट लास्ट टाइम्स आईडी का मतलब होता है कि एक तो मेरा आईडी सेम है, ओके, एवरी डे आई एम यूजिंग सेम आईडी, आई एम नॉट जनरेटिंग न्यू आईडीज एवरी टाइम, सेम है. स्टिल स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, सर
लास्ट आईडी मीन्स जो कल का मैथ्स का आईडी था वो आईडी यूज करना है क्या? सो इट्स हाइट ऑफ स्टुपिडिटी आई थिंक. आई सेड माई आईडी मीन्स सेव माई आईडी समवेयर. ओके, उसका पासवर्ड और आईडी दोनों भी बुक में लिख के रख लो. माई आईडी मीन्स इट विल बी सेम एवरी टाइम. ओके, फॉर सच स्मॉल थिंग्स आई डोंट वांट स्टूडेंट्स कॉलिंग मी इन बिटवीन. चलिए ठीक है, तो प्लीज वेट को हटा देता हूँ. तो मैं कल आपको ये वो कॉन्सेप्ट्स बता रहा था. ओके, दिस वन. तो इस कॉन्सेप्ट में लाइक इफ आई ट्राई टू इंक्रीज इट like this, okay, if I try to increase it, it will become a circle. Okay, and if this become a circle, it means that इसके पास इसका रेडियस भी होगा. करेक्ट. तो अब सेम चीज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ. मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है. ओके, सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है और सर्कल का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर जो है, दिस पार्ट, this is my mirror. okay, वापस से थोड़ा सा. okay, so this part is my mirror. करेक्ट. मैंने बाहर का साइड पेंट किया है, इट मीन्स अंदर की तरफ से आप उसको देख सकते हैं. ठीक है. तो इस सर्कल एक्चुअली पूरा सर्कल तो था नहीं, खाली एक छोटा सा मिरर टाइप था. एज लाइक आई एम ड्रॉइंग इट हियर नाउ, इट वाज जस्ट दिस मच पार्ट. ठीक है, बस इतना सा पार्ट था. बट ये जो पार्ट है इट लुक्स लाइक अ आर्क. आर्क आप लोगों को पता होगा, सर्कल में एक आर्क करके टॉपिक है. पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क. ठीक है. तो अगर मैं इसको मतलब ये जो आर्क है, आर्क को पूरा एक्सटेंड करूंगा, तो पूरा एक्सटेंड करने के बाद में इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इट मीन्स इट विल बी अ सर्कल. करेक्ट, इट विल बी अ सर्कल. नाउ इफ इट इज अ सर्कल, then of course there should be a radius, और रेडियस होने से पहले there should be a center. So I'm just drawing a center over here. So let's say that this is the center. Okay, that's called center of curvature. Center of curvature. Okay, now from this C to this circumference I will call it as R. R म्हणजे काय? R म्हणजे radius. So I'll write radius of that curve part. तो simple word में radius of curvature I'll say. Correct? Now another concept, like if I extend this line outside, okay, if I extend this line outside, then this line will be called as, rather than extending it here, I'm extending it this side. Okay, so this line will be called as principal axis. I'm writing there principal axis. For principal axis we are not using this symbol PA, just for a shortcut I'm writing this symbol. But for center of curvature we can use C, and we can use R for radius of curvature. That is legal. Okay, but using PA is not mentioned anywhere in the textbook, so you also don't use that shortcuts. PA का मतलब मैंने बताया principal axis. I'm just writing the principal axis. Okay, textbook में यहाँ पे PAL लिखा है, that is correct. Okay, जनरली PAL पल वाला प्रिंसिपल हम लोग स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं उनके लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम
इस लाइन के लिए यूज करने वाले। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइक मान लो अगर मेरा आर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मेरा आर का डिस्टेंस, अगर मेरा आर का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का हाफ कितना हो जाएगा? इट विल बी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो कहीं तो इस जगह पे आपको मिलेगा। लाइट कलर यूज कर लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कैपिटल एफ। क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब होता है फोकस, ठीक है। क्या मतलब? फोकस। फोकस क्यों बोला गया है? जनरली लाइक हाफ को हम फोकस बोलेंगे, बट फोकस की और भी वजह है कि उसको फोकस क्यों बोलते हैं, ठीक है। वो हम थोड़ी देर के बाद में अंडरस्टैंड करेंगे कि फोकस उसको क्यों बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मैंने बताया कि ये बराबर सेंटर पे रहेगा, लाइक सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको मैंने बोल दिया पी। पी का मतलब पोल, लिख देता हूँ, पी म्हणजे काय? पोल, ओके। तो पोल क्या है? पोल एक मिड पॉइंट है, जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, और ये आपका मिरर है। तो मिरर को मैंने ले लिया ए बी, ये मिरर है। बट जनरली लेंसेस में जब लेंस हम स्टडी करते हैं तो ए और बी नहीं लिखते, एम और एम डैश लिखा जाता है, मर्जी लिखने वाले की। तो वही हम वैसे स्टडी करेंगे, एम और एम डैश। बट अगर मैंने ए और बी लिखा है तो वो भी रॉन्ग नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में एम और एम डैश है तो मैं एम और एम डैश यूज करूंगा। अब इसका जो सेंटर होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये उसका सेंट्रल पार्ट है, तो इसको मैं बोलूंगा पी। पी म्हणजे काय? पोल, ठीक है, पोल। तो वैसे ही इधर पी ले लिया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम, और ये पॉइंट मैंने लिख लिया एम और एम डैश, ठीक है, एम और एम डैश। अब ये जो पी है, दिस पी इज एट द सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है? द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम, लिख दो प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन the line which is passing through center of curvature and pole of the mirror, okay, is called as principal axis. Or we can say the line extended from the mirror passing through the center, that line is called as principal axis, okay। चलिए come back to that diagram। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस दिखता होगा, दैट डिस्टेंस जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है उसको स्मॉल एफ कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ बहुत ही सिंपल है, लाइक अगर आपका रेडियस 6 है तो फोकल लेंथ 3 रहेगा, अगर आपका रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ 5 रहेगा, अगर आपका रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ जो है 10 रहेगा, ठीक है, लाइक वाइज। तो सिंपल, इतना सब बोलने से अच्छा कासिम सर अगर एक फॉर्मूला दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, आपको रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू, लिख देता हूँ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, ओके, एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर। तो इस तरीके से आपको इसका फोकल लेंथ का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब
एक मिनट रुकिए। ओके मिरर, सो एज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाथ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके वजह से उसका जो हाथ है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये मिरर कोई आम मतलब प्लेन मिरर नहीं है, ये जनरली हम कोई चीज को एनलार्ज करके देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और ढूंढ रहा था लेकिन ये मिल गया तो बोला चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स जब होते हैं तो उसमें जब गाड़ी टर्न लेती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, वहां से कोई आता है तो उस केस में आपने देखा रहेगा कि कुछ इस टाइप का मिरर वहां पे लगा होता है, तो इससे आपको कंप्लीटली एक व्यू मिलता है। मतलब मिरर तो छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी चीज को कवर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चीज को छोटे से पार्ट में हम उसको कवर करके देख सकते हैं। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज सच काइंड्स ऑफ मिरर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। जस्ट अ मिनट। Just a minute, student. I'm searching the image. Okay. So as you can see on the screen, my screen is visible. Any one of you can message me and tell me screen is visible. Okay, ठीक है, मैसेज आ गया, बस बस बस। तो ये एक मिरर है, इस मिरर में एक सरफेस जो है वो पेंटेड है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सरफेस इसके अंदर पेंटेड है। एज यू कैन सी दिस साइड, दिस साइड इज पेंटेड। ठीक है, ये साइड आपका पेंटेड है। तो यहाँ पे जनरली उन्होंने ब्लू कलर जिसके लिए यूज किया है वो पेंटेड है। हम इतना मोटा मोटा लाइन ड्रॉ नहीं करते बैठेंगे, हम खाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसा मैंने ड्रॉ किया है, विच शोज दैट कि ये वाला पार्ट जो है उसका पेंटेड है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही है इन दिस डायरेक्शन, कैन यू सी दैट रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद में लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया और ये लाइट कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। थोड़ा मोटा कर देता हूँ मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अब अगर सेकेंड रे को देखूं तो सेकेंड रे भी जो है बहुत दूर से रेज आ रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे पास हो रहा है, सेम पॉइंट पे पास हो रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रेज भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है, सो दिस रेज इज ऑल्सो गोइंग टू द सेंटर। इफ आई एम सीइंग द नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट, तो वो भी यहाँ से रेज जो है कहाँ जाने वाला है। आई एम मेकिंग टू मेनी एरोज बट डोंट गेट कंफ्यूज, ये भी एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर की एक खासियत क्या है
कि जितने भी रेज यहाँ से आ रहे हैं, ऑल द रेज विल गेट कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट। जैसे कि ये मान लो रेलवे स्टेशन है पुणे का, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पुणे, दैट्स व्हाई आई टुक एग्जांपल ऑफ पुणे। तो ये रेलवे स्टेशन है पुणे का, पुणे से जस्ट पहला वाला स्टेशन लोनावला है, करेक्ट। और पुणे के बाद सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, मतलब उसके आगे ही आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नेटवर्क्स मिलेंगे। एक जो है सिकंदराबाद के लिए निकल गया, सिकंदराबाद के स्टेशन से जस्ट पहले लाइन कटती है, आप लोग को ही पता होगा, और हैदराबाद आता है, तो दोनों भी बाजू बाजू में स्टेशन है, राइट। और ये सारे नेटवर्क आके एक जगह पे कलेक्ट हो गए, जिसका नाम है जंक्शन। जंक्शन वर्ड बोला क्यों जाता है, यहाँ पे आके सारी चीज आके ज्वाइंट हो जाती है। तो जो ट्रेन अलग अलग रूट से आ रही है, सिकंदराबाद से आ रही है, हैदराबाद से आ रही है, बैरमपेट से आ रही है, ओके, और डिफरेंट लाइक बेंगलोर से आ रही है, तो ये सारी चीजें आके एक कॉमन स्टेशन पे आके कलेक्ट हो गई, उसको बोलेंगे जंक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जितने भी रेज अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये सारे रेज जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये सब के सब आके एक सिंगल जगह पे आके कलेक्ट हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फोकस। तो इसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। ट्रेन एक जगह पे जमा होती है तो उसको जंक्शन बोलेंगे, और रेज एक जगह पे जमा होती है तो उसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। चलिए, तो ये दो रेडीमेड डायग्राम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सेम डायग्राम जब आपको बनाना पड़ेगा तो आप कैसा बनाओगे, तो मिरर का जो पार्ट है ये तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको लेंस बनाने के लिए बोला जाएगा। एक मिनट टेक्स्ट बुक देख लेता हूँ, नहीं तो मैं खुद किसी और ट्रैक से कहीं और स्टेशन पे ले जाऊंगा आपको। यस, आपको मिरर नहीं है, पूरा आपको लेंस के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब लेंस का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये लेंस समझ में आ गया, ये मिरर समझ में आ गया। सेम अभी ये सारी चीजें, मिरर मैंने इसके लिए पढ़ा दिया कि मिरर को अंडरस्टैंड करने के बाद में लेंस को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, ठीक है। चलो डिलीट। तो जिस तरीके से हमने मिरर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, 6 मिनट के बाद में सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके, सेक्शन विल बी ओवर एंड यू ऑल हैव टू रीजॉइन, ठीक है। आपको फिर से ज्वाइन करना है, शायद से 10-15 मिनट सेक्शन खत्म होने के बाद में और आपको पढ़ाऊंगा। जैसे ही सेक्शन खत्म होगा नेक्स्ट मिनट में ही आई विल स्टार्ट माय टीचिंग, तो आप लोग को बीच में ब्रेक नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तुरंत आपको स्टार्ट करना है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था मिरर के बारे में, मिरर जो था खत्म हो गया, अभी आपको लेंस के बारे में स्टडी करना है। तो लेंस ड्रॉ कैसे करना है, आज मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि लेंस को ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेना है स्केल, स्केल ले करके आप एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप जाके 10 और 20 बार और 100 बार भी सुन सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो मैंने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है, लिख देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, तो स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, ये मेरा 5 है, 5 का हाफ होता है 2.5, और मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा 7.5। मतलब मुझे टोटल 10 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है।
10 सेंटीमीटर की लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक 0 पे रहेगा, एक 2.5 पे रहेगा, एक 5 पे रहेगा और एक 7.5 पे रहेगा, फिर लास्ट वाला 10 पे रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट में अगर आप गड़बड़ करते हो तो आपका लेंस टेढ़ा मेढ़ा आएगा और डायग्राम बराबर नहीं आएगा। ये ट्रिक्स कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो आपको कभी भी स्कूल में नहीं बताई जाएंगी। ये ट्रिक्स आपको कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको ये छोटे छोटे ट्रिक्स नहीं मिलने वाले। इससे आपका डायग्राम जो है परफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 2.50 इतना ही रहने दीजिए। अब इतना मार्क करने के बाद में आप आपकी लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से भी एक्सटेंड कर लिया है और मैंने इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबको पता है राउंडर क्या होता है? कंपास। ठीक है, कुछ इस तरीके का ही रहता है वो। तो आप राउंडर को लेकर के यहाँ पे रखिए, इस जगह पे। राउंडर को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए और एक्सटेंड करिए, ज्यादा एक्सटेंड मत करना, टूट जाएगा। इतना एक्सटेंड करने के बाद में मतलब आप देख सकते हो कि जो 5 था, ओके 5 था, 5 यहाँ पे कहीं पे 5 था, तो मैंने राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखा। राउंडर के पॉइंट को यहाँ पे रख के मैंने 5 से थोड़ा सा आगे, मतलब समवेयर हियर, 5 से थोड़ा सा आगे मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है? मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मैं आर्क कैसा ड्रॉ करूं, क्योंकि मैं तो राउंडर इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता हूं। ट्राई करते हैं। तो ये मेरा आर्क बन गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड साइड से भी मुझे सेम चीज करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे इस पोजीशन पे राउंडर को रख के थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये बन गया मेरा लेंस। इस तरीके से आपको लेंस ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट्स मेरे थोड़े से और क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे रखा राउंडर को इस पॉइंट पे, और राउंडर का सेकेंड पार्ट मैंने मान लो 5.5 जो था मेरा मिड पॉइंट था, तो मैंने 5.3 ले लिया। तो पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, राउंडर का मतलब कंपास। ठीक है, राउंडर का मतलब कंपास। ठीक है, राउंडर का मतलब कंपास होता है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा राउंडर है बराबर। तो इसी को हम बोलते हैं कंपास। ठीक है, 1 मिनट बाकी है, जैसे ही सेक्शन खत्म होएगा आप ऑनलाइन रहिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो सेव होने को 2 मिनट लगता है। ठीक है, बट आप लोग ऑनलाइन रहिए, मैं फटाक से कनेक्ट करूंगा।